نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ تراویح کے بارے میں بات کی جائے گی اور دلائل کے ساتھ، ایسے نہیں، قرآن و احادیث سے دلائل کے ساتھ بات کی جائے گی، کیونکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یا رمضان قریب آتا ہے تو کچھ لوگ، فسادی قسم کے لوگ ہا ہلا سا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تراویح 8 رکعات ہے یا 20 رکعات ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہمیشہ سے 20 رکعات پڑھتے چلے آ رہے، تو بھائی لوگوں میں فساد پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو آرام سے تراویح پڑھنے دے۔ لیکن نہیں، انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں ہر حال میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ہے، ان کا ذہن خراب کرنا ہے، اور وہ اتنے بڑے جاہل کو کہ ان کو اپنے جاہل ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو دلائل دیے جائیں گے کہ 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے، اور پھر ان دلائل کا جواب دیا جائے گا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو، ان احادیث سے اور روایات سے 8 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لینا کہ بھائی 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بات بتلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تقریباً تمام صحابہ سے، اس کے بعد تابعین سے اور تبع تابعین سے، اور آج تک امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح یہی سنت ہے۔ غور سے سن لینا، اور اگر کسی کو جواب دینا ہے تو دلائل کی روشنی میں ہی جواب دے، ایسے ہوائی فائرنگ جواب نہ دے۔ تو میں بتلا دوں کہ 20 رکعت تراویح کی سب سے بڑی دلیل ہے اجماع، صحابہ کرام کا اور تابعین کا اور امت کا آج تک 20 رکعت تراویح پر اجماع چلا آ رہا ہے، اور یہ اجماع خالص اجماع نہیں ہے بلکہ دلائل کی روشنی میں اجماع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت ہے۔ چنانچہ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے۔ میں عبارت بھی پڑھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعۃ والوتر۔ ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جماعت کے بغیر 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وطر پڑھتے تھے۔ جماعت سے الگ کیوں پڑھتے تھے وہ ابھی بتاتا ہوں میں۔ یہ ہو گئی بیہقی کی روایت جو السنن الکبریٰ میں امام بیہقی نے نقل کی ہے۔ دوسری مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عباس ہی کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر۔ یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ اس میں ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ جو صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے ہٹ کر 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ بات بالکل صاف ہو گئی۔ اب کچھ غیر مقلدین حضرات کیا کہیں گے کہ بھئی یہ روایت ایسی ہے، یہ روایت ایسی ہے۔ سب سے پہلے تو میں غیر مقلدین حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی حدیث پر ضعیف یا صحیح کہنے کا حق ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہارے یہاں تو صرف قرآن و حدیث کو مانا جاتا ہے، غیر نبی کا قول تو تمہارے یہاں معتبر ہے ہی نہیں، اور تم کسی روایت کو ضعیف یا صحیح کہنے کے لیے کسی محدث کا، کسی فنکار کا قول پیش کرو گے، اور وہ تمہارے یہاں قابل اعتبار نہیں ہے، تو تمہیں تو کسی روایت کو ضعیف کہنے کا حق ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت ضعیف بھی ہے تو ان روایت کا ضعف امت کے تواتر سے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات تقریباً سب مانتے ہیں کہ اگر ایک روایت خبر واحد ہے یا ضعیف ہے اور امت کا اس روایت کے مطابق تواتر چلا آ رہا ہے تو وہ صحیح کے درجے میں ہو جاتی ہے اور وہ روایت قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात तरावी का पढ़ना साबित है। अच्छा, अब मैं यहाँ 2 रिवायतें पेश करता हूँ कि हुजूर ने तरावी किस तरह पढ़ी। मैं असल में बात वहां लाना चाह रहा हूँ कि सहाबा का और उम्मत का इजमा है, तो ये इजमा क्यों हुआ? 20 रकात तरावी पर ही क्यों इजमा हुआ? 8 रकात पर, 16 रकात पर, 12 रकात पर क्यों इजमा नहीं हुआ? सारे सहाबा, सारे ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन, आइम्मा अरबा, वो सारे के सारे 20 रकात के कायल है, तो वो क्यों हैं? उसकी तरफ ला रहा हूं मैं। तो ये 2 रिवायत दिखा दी। अब आप अबू दाऊद शरीफ की रिवायत पर आ जाए। ये रिवायत हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है। वैसे तो लंबी हदीस है, मैं उसका खुलासा बतलाता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान हमें नमाज नहीं पढ़ाई, लेकिन 23वीं रमज़ान को, यानी 23वीं शब को, रमज़ान की 23वीं शब को हुजूर आए और लोगों को नमाज पढ़ाई। ये नहीं है इस हदीस शरीफ में कि कितनी पढ़ाई। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि 23वीं शब को हुजूर ने हमें नमाज पढ़ाई तिहाई रात तक। उसके बाद हुजूर ने 24 को नहीं पढ़ाई, 25वीं शब को फिर पढ़ाई, और कितनी देर तक? आधी रात तक। 23वीं को तिहाई रात तक और 25वीं को आधी रात तक। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि फिर 26 को नहीं आए हुजूर, 27वीं शब को आए, और 27वीं शब को फिर हमें नमाज पढ़ाई, और पूरी रात तक सहरी के वक्त तक हमें नमाज पढ़ाई। तो इस हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रिवायत में यह है कि हुजूर ने सिर्फ 3 रात तक, 23, 25 और 27, 3 रातों में नमाज पढ़ाई। बाकी दिनों में क्यों नहीं पढ़ाई? सिर्फ 3 रात तक क्यों पढ़ाई? तो इसका जवाब दूसरी रिवायत में है जो बुखारी और मुस्लिम में है। जब हुजूर ने तरावी की नमाज पढ़ाई तो सहाबाए किराम रोजाना आते थे नमाज पढ़ने के लिए कि शायद आज भी पढ़ाए, लेकिन हुजूर ने 23 को पढ़ाई, 25 को पढ़ाई और 27 को पढ़ाई। सहाबाए किराम जिस तरह 23 को आए थे, इसी तरह 24 को भी आए थे, और जिस तरह सहाबाए किराम 25 को आए थे, 26 को भी आए थे, लेकिन हुजूर ने न 24 को पढ़ाई और न 26 को पढ़ाई। बाद सहाबा सोचने लगे कि शायद हुजूर अंदर सो गए हो, तो खंकारने लगे। थोड़ी देर के बाद हुजूर अकरम घर से अंदर से तशरीफ लाए और सहाबा को कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम पढ़ने के लिए आए थे, नमाज पढ़ने के लिए, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई क्योंकि मुझे खतरा था कि कहीं तुम पर ये तरावी फर्ज न कर दी जाए। हुजूर ने ये क्यों खदशा जाहिर किया? देखो यहाँ ये बात समझो कि जब नबी की तरफ से किसी अमल पर पाबंदी होती है और उम्मत की तरफ से उस पर शौक दिखाया जाता है, जब ये 2 बातें जमा हो जाए, नबी की तरफ से पाबंदी और उम्मत की तरफ से शौक, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो अमल फर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं रोजाना इसलिए नहीं आता पढ़ाने के लिए, मुझे डर है कि अगर मैं रोजाना पढ़ाने के लिए आऊंगा तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तरावी तुम पर फर्ज कर दी जाएगी और तुम इसको अदा न कर सको। तो हुजूर ने उम्मत की नरमी के लिए इसको फर्ज होने से बचाया। तो यहाँ एक चीज पाई गई थी, उम्मत का शौक, लेकिन नबी की तरफ से पाबंदी नहीं पाई गई। जब पाबंदी नहीं पाई गई तो ये फर्ज नहीं हुई। हुजूर के अंदर से चाहत थी कि ये जो तरावी है, नमाज है, रोजाना पढ़ाई जाए, लेकिन इस डर से न पढ़ाई। ये 2 रिवायतें हो गई। पहली 2 रिवायतें जो इब्न अब्बास से बयान की थी उसमें रकात का भी जिक्र है। इन 2 रिवायतों में जो पहली रिवायत हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की अबू दाऊद में है और ये दूसरी रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम में है, इनसे पता चला कि हुजूर की चाहत थी रोजाना तरावी पढ़ाने की, लेकिन तरावी नहीं पढ़ाई। अब जब हुजूर का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी ऐसा ही चलता रहा। कैसा चलता रहा कि बाकायदा तरावी की जमात नहीं होती थी। कुछ लोग यहाँ खड़े होकर तरावी पढ़ रहे, कुछ एक आदमी यहाँ खड़े होकर पढ़ रहा है, इसी तरह चलता रहा। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया, अब ये रिवायत सुन लीजिए। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं हजरत उमर के साथ मस्जिद में गया। वहां जाकर हजरत उमर ने देखा कि लोग
कुछ इधर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ इधर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि कितना अच्छा हो अगर ये सारे के सारे एक जमात के साथ एक इमाम के पीछे नमाज पढ़े। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबैय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु की इक्तिदा में एक जमात करके लोगों को तरावी पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ ये बात समझने की है कि जिस वक्त हजरत उमर ने ये काम किया कि पहले तो लोग तरावी अलग अलग पढ़ते थे, हजरत उमर ने क्या किया, सबको इकट्ठे कर दिया। उस वक्त सहाबाए किराम हयात थे और बड़े बड़े सहाबा हजरत उस्मान गनी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा, किसी ने भी इनकार नहीं किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका घर तो मस्जिद नबवी की बराबर में था, उन्होंने भी कभी इनकार नहीं किया। तो तमाम सहाबा की मौजूदगी में हजरत उमर ने ये काम किया और किसी ने इनकार नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सहाबाए किराम के पास, हजरत उमर के पास कोई दलील थी, कोई वजह थी कि उन्होंने इस काम को शुरू किया और किसी ने नकीर भी नहीं की। ये बात समझने की है। हालांकि मैं पहले दलील दे चुका हूं, चलो मान लो कि उन रिवायतों में ज़ौफ है, लेकिन इतने सहाबा, जरूर उनके पास कोई ना कोई हदीस होगी, दलील होगी, जो हजरत उमर ने सबको इकट्ठा किया और 20 रकात का हुक्म दिया। और सिर्फ यही सहाबी नहीं है, इसके बाद भी लोगों में यही सिलसिला रहा। हजरत आता फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है उनका ये कौल कि मैंने मदीने में किसी को भी 20 रकात से कम नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मदीने में सहाबा को, ताबीईन को 20 रकात पढ़ते हुए ही देखा है, किसी ने इनकार नहीं किया। और आजकल जो ये 12वीं सदी के बाद नए मुज्तहिद पैदा हो रहे हैं, जो हकीकत में जाहिल है और अपने आप को अल्लामा कहते हैं, अपने आप को आलिम कहते हैं, तो उनका ये कहना कि तरावी की रकात 8 होती है, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम सहाबा के पीछे ना चलो, हमारे पीछे चलो। अपने पीछे लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने पीछे लगाने के लिए सहाबा से काटना भी तो जरूरी है। तो क्या कहते हैं, भाई ये तो सहाबा का काम है, तो सहाबा के ना ऐसे ही थोड़े ही कर दिया, उनके पास दलाइल थे। अगर एक के पास होते, दो के पास होते, तो तीसरा तो इनकार करता। न तो किसी सहाबी से कोई नकीर मनकूल है, न हजरत आयशा से नकीर मनकूल है। हालांकि हजरत आयशा की तो रिवायत है बिदात वाली बुखारी शरीफ में कि मन अहदस फी अमरीना हादा माली समिनहु फहुवा रद्दुन। ये हजरत आयशा की ही तो रिवायत है, मशहूर रिवायत, कि हुजूर ने फरमाया कि हमारे इस दीन में अगर किसी ने कोई काम ईजाद किया तो वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है। हजरत आयशा के पास ये तरावी हो रही है और हजरत आयशा ने नकीर भी नहीं की। क्या उनके अंदर, नाउज़ बिल्लाह, हजरत आयशा के अंदर इतना ईमानी जज्बा भी नहीं था जैसा कि आजकल के जाहिल अल्लामाओं के अंदर है? ये हो गई हजरत उमर के दौर की बात। अब हजरत उस्मान के ज़माने में आ जाए। चुनाचे हजरत साइब इब्न यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर के दौर में लोग और सहाबा 20 रकात तरावी का एहतिमाम करते थे। ये रिवायत सुनन कुबरा में है। और हजरत उस्मान के ज़माने में तो लोग इतनी लंबी लंबी तरावी पढ़ते थे कि डंडों का और लाठियों का सहारा लेते थे खड़ा होने के लिए। तो ये हो गया हजरत उमर के दौर का और हजरत उस्मान के दौर का हाल। अब हजरत अली के दौर में क्या हाल था? अब्दुर्रहमान अस्सुलमी ये फरमाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कारियों को बुलाते थे और उनको 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया करते थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये रिवायत भी अस्सुननुल कुबरा में है, वहां जाकर देख लीजिए। तो उमर के जमाने में, उस्मान के जमाने में और अली के जमाने में, तीनों में 20 रकात तरावी हुआ करती थी। तो ये हो गया खुलफाए राशिदीन और सहाबा के दौर का हाल। आप कुतुब अहादीस उठाकर देखें कि सहाबाए किराम किसी एक सहाबी से भी अमलन 8 रकात तरावी साबित नहीं कर सकते। 20 या उससे ज्यादा तो मिल जाएगी आपको,
20 या 20 से ज्यादा, लेकिन 8 कहीं नहीं मिलेगी। 20 से ज्यादा क्यों, उसकी कोई वजह है, बतला दूंगा इंशाअल्लाह अगर जहन में रहा तो। किसी सहाबी से 8 रकात तरावी साबित नहीं है, बल्कि मुल्ला अली कारी ने तो लिखा है मिरकातुल मफाती में कि सहाबाई किराम का इजमा था। अल्लामा कस्सलानी ने भी लिखा है कि सहाबाई किराम का इजमा हो गया था इस पर कि 20 रकात तरावी ही पढ़ी जाएगी। और उनका इजमा ऐसे नहीं हो गया कि उन्होंने अपनी तरफ से घड़ लिया, क्योंकि उन्होंने हुजूर को देखा था, हुजूर के पास रहने वाले थे, हुजूर के वो शागिर्द थे, तो उनके पास दलीलें थी, इसलिए उनका इजमा हुआ है। और अगर मान लो वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत भी ना हो, जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और दूसरी किताब के हवाले से, मान लो वो रिवायत भी ना हो, खालिस सहाबा का अमल हो, तब भी हमारे लिए काफी है दलील के लिए कि 20 रकात तरावी ही होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खैरुन नासी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। एक रिवायत में है खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, यानी सहाबा का ज़माना, और उससे के बाद फिर बाद का ज़माना यानी ताबिईन का ज़माना, और फिर उसके बाद तबे ताबिईन का ज़माना। एक रिवायत। दूसरी रिवायत में है जो मिशकात शरीफ में भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद बहुत ज़्यादा फितने और फसाद ज़ाहिर होंगे, तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, मेरी सुन्नत को भी और मेरे खुलफा की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ना। अब हजरत उमर भी खलीफा सानी है, खलीफा राशिद है। अगर इन्होंने 20 रकात को जारी किया, 20 रकात तरावी को शुरू किया, तब भी हमारे लिए जरूरी है कि हम 20 रकात ही पढ़े। क्यों? कोई ये नहीं कह सकता भाई हम तो हुजूर की इत्तिबा करते हैं, हजरत उमर की इत्तिबा नहीं करते। भाई हम हुजूर ही की इत्तिबा करते हैं, लेकिन हजरत उमर की इत्तिबा करने के लिए हमें हुजूर ने हुक्म दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। तो हजरत उमर की इत्तिबा दर हकीकत हुजूर ही की इत्तिबा है, फिर भी 20 रकात ही सुन्नत करार दी जाएगी। सहाबाए किराम का दौर हो गया, उसके बाद अइम्मा अरबा आ जाए। अइम्मा अरबा के यहाँ भी 20 रकात तरावी ही है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल, सबके यहाँ 20 रकात तरावी ही सुन्नत है। और इमाम तिरमिजी ने तिरमिजी शरीफ में नकल किया कि 20 रकात तरावी सहाबाए किराम की भी सुन्नत है, और उसके बाद फिर ताबिईन की, सुफियान सोरी, इब्ने मुबारक वगैरह, और इमाम शाफी भी 20 रकात तरावी के ही कायल थे। बल्कि इमाम शाफी का कौल भी नकल किया है इमाम तिरमिजी ने। क्या कहा? इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने मक्के में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ते ही पाया है। अब तक तो मदीने वालों के बारे में बताया था कि मदीने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा और ताबिईन 20 रकात पढ़ते थे, और इमाम शाफी फरमाते हैं कि मक्के में भी 20 रकात ही पढ़ते थे। तो चारों इमामों का कौल ये है कि 20 रकात तरावी ही सुन्नत है। ये हो गया सहाबा का दौर, ताबिईन का दौर, और उसके बाद तबे ताबिईन में भी ऐसा ही रहा, और 1000 साल से ज्यादा यही सिलसिला चला रहा। पूरी दुनिया में कहीं भी एक जगह भी 8 रकात तरावी नहीं पढ़ी जाती थी। 13वीं सदी हिजरी में सबसे पहले 8 रकात तरावी का शोर शराबा किया गया, और उसके बाद से आज तक यही चला आ रहा है। आजकल कुछ लोगों ने इस 8 रकात तरावी वाले कौल को और ज्यादा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों में बेदीनी और बददीनी बहुत ज्यादा है, तो ये लोग इस्लाम से जान छुड़ाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि भाई हदीस ही नहीं है, हदीस पर अमल करना जरूरी नहीं है। कोई कहते हैं कि अमल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमान ही काफी है। कोई कहता है कि भाई तरावी जो है 20 रकात नहीं है, सिर्फ 8 रकात हैं। अगर आप एक बात बतलाऊं मैं, इन मुल्हिदों की और बेदीनों की हालत यह है कि अगर आज 8 रकात शुरू कर दी जाए
तो आने वाले वक्त में जाकर ये कहने लगे कि भाई ये सुन्नत ही तो है, जरूरी थोड़ा ही है, तो ये 8 रकात तरावी से भी पीछा छुड़ा देंगे। कभी कहते हैं कि भाई दाढ़ी तो सुन्नत ही नहीं है, कभी कहते हैं कि इस्लामी कोई लिबास नहीं है, जैसा चाहे पहनो। तो दर हकीकत ये इस्लाम से जान छुड़ाना चाहते हैं, और जान छुड़ाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इस्लाम सीखा नहीं, इस्लाम को समझा नहीं, इनके दिल में ईमान उतरा नहीं। और क्यों नहीं उतरा? क्योंकि ये दीनी माहौल में पले पढ़े नहीं हैं, अंग्रेजी और बेदीन वाले माहौल में इनकी परवरिश हुई है। क्योंकि मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, लेकिन तरबियत जो हुई, वक्त जो गुजरा, वो बेदीनी में गुजरा। तो इसलिए मुसलमान रहकर भी मुसलमान से बाहर हो जाएं, मुसलमान तो कहलाएं, लेकिन मुसलमान वाला कोई काम ना करे, जो चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, जैसा चाहे कपड़ा पहने या ना पहने, दाढ़ी रखे या ना रखे, सुबह देर तक सोते रहे, रात को जिस वक्त चाहे सो जाए, जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, इनका मकसद ये है। तो आप खुद फैसला करें कि सहाबा किराम का, ताबई का और आइम्मा मुज्तहिदीन का। अच्छा, कुछ लोग आजकल लोगों को ये कहकर भी उल्लू और बेवकूफ़ बनाते हैं, यार तुम आइम्मा मुज्तहिदीन का कौल क्यों नकल करते हो, हदीस दिखाओ और जी कुरान दिखाओ। तुम कहते हो इमाम अबू हनीफा ने ये कहा, तुम कहते हो इमाम मालिक ने ये कहा। भाई ठंडे दिल से आप बात सोचिए। सबसे पहले तो हदीस शरीफ भी दिखा दी और सहाबा का अमल भी दिखा दिया, इससे आगे कुछ नहीं रह जाता। लेकिन इमाम अबू हनीफा और आइम्मा मुज्तहिदीन का कौल इसलिए बताया जाता है कि ये इस फन के माहिर थे और माहिरों के भी माहिर थे। आजकल के जैसे माहिर फिरते हैं ना ये कि भाई ये इस फन का माहिर, इस फन का माहिर, ऐसे माहिर नहीं थे, उससे भी बहुत आला क्वालिटी के, जिनकी एक एक हदीस पर, एक एक रिवायत पर बहुत गहरी नजर होती थी। अब आप खुद सोच ले कि एक सिक्का है, सिक्का, आम आदमी 100 एक तरफ है और सुनार एक तरफ है। सुनार कह रहा है कि ये लोहे का एक सुनार, और 100 आम आदमी क्या कह रहे हैं कि नहीं ये चांदी का। तो आप किसकी बात मानेंगे? सुनार की बात मानी जाएगी। आम 100 आदमी ये कह रहा है कि इस बीमार का इलाज इस तरह होगा, एक डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसका इलाज ऐसे नहीं जैसे तुम कह रहे, इसका इलाज ऐसे होगा। तो किसकी बात मानी जाएगी? आप किसकी बात मानेंगे? डॉक्टर की। क्यों मानेंगे आप सुनार की? क्यों मानेंगे आप डॉक्टर की? क्योंकि वो उस फन का माहिर है जिसके बारे में बात चल रही है। हम क्यों बात मानते हैं कि भाई इसके पास दलील होगी, तजर्बा है, क्योंकि ये इस मैदान का बड़ा आदमी है। तो आइम्मा का कौल भी इसलिए दिखाया जाता है कि अगरचे हम कुरान हदीस ज्यादा नहीं पढ़ते, इनकी हर बात पर नजर थी। हमारे से ज्यादा इल्म को हासिल करने वाले, हमारे से ज्यादा मुत्तकी, हमारे से ज्यादा परहेजगार है, खौफ खुदा इनके दिल में है। तो ये कह रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इनके सामने दलील होगी, इसलिए पेश किया जाता है। अब आ जाते हैं उन लोगों की दलील की तरफ जो ये कहते हैं कि तरावी की जो रकात है वो 8 है। एक मशहूर रिवायत है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, हजरत आयशा की रिवायत है। मैं रिवायत पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर उसका जवाब दूंगा। अन अबी सलमत बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सअल आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान फ़क़ालत मा कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन युसल्ली 4 फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न सुम्मा युसल्ली 4 फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न सुम्मा युसल्ली 3 क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अतनामु क़ब्ल अन तूतिरा फ़क़ाल या आयशा इन ऐनय तनामानि वला यनामु क़ल्बी। ये हज़रत आयशा की रिवायत है और इबारत भी इसीलिए मैंने पढ़ दी है ताकि कोई खयानत करने वाला खयानत ना कर सके। अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर रमज़ान में कैसी इबादत करते थे, हुजूर की कैसी नमाज थी रमज़ान में। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 4 रकात पढ़ते थे। और तो तू उनकी खूबी और लंबाई के बारे में न पूछ, फिर 4 रकात पढ़ते थे और तू उसकी खूबसूरती
اور तिवालत के बारे में मत पूछ। कितनी मरतबा फरमाया? सलासन, 3 मरतबा। और भी आगे तर्जमा है, लेकिन मकसद यही है। तो इस रिवायत का खुलासा यह है कि अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा से हुजूर के रमज़ान की नमाज के बारे में पूछा, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि हुजूर रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अब जो लोग 8 रकात के कायल है वो क्या कहते हैं कि देखो हुजूर 11 रकात पढ़ते थे, 8 रकात तरावी हो गई और 3 रकात वित्र हो गए। आप खुद सोचें, क्या इस हदीस का ताल्लुक तरावी से है? क्योंकि तरावी तो रमजान में पढ़ी जाती है। हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया कि हुजूर रमजान और बगैर रमजान दोनों में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो पता चला कि इसका ताल्लुक तरावी से नहीं बल्कि तहज्जुद से है, क्योंकि रमजान में तरावी पढ़ी जाती है और तहज्जुद रमजान और बगैर रमजान दोनों के पढ़ी जाती है। अब अगर कोई कहे कि भाई तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा तहज्जुद के तौर पर पढ़ते थे, वही नमाज रमजान में जाकर तहज्जुद बन जाया करती थी। कुछ लोग ये कह सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। तो उन लोगों से पूछा जाएगा, क्या दूसरी हदीस शरीफ में नहीं आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और महीनों के मुकाबले में ज्यादा इबादत करते थे? बल्कि एक हदीस शरीफ में तो ये आया है कि इजार बांध लिया करते थे। इजार बांधने का मतलब ये है कि खूब इबादत किया करते थे। तो खूब इबादत कैसे होगी भाई, ये बतलाइए। अगर कोई कहे कि भाई रोजे रखते थे, तो रोजे तो और सहाबा भी रखते थे, तो हुजूर की कहाँ खासियत हुई कि हुजूर और लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे? तो खूब इबादत तो उसी वक्त होगी जब तरावी 20 रकात हो, क्योंकि 11 तो आप पढ़ते ही आ रहे पहले से। तुमने यही तो कहा ना कि जो गैर रमजान में तहज्जुद है वही रमजान में तरावी है। तो भाई फिर उस हदीस का क्या जवाब दोगे जिसमें यह है कि हुजूर रमजान में बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे? इबादत ज्यादा तो जब ही होगी जब 8 रकात नहीं बल्कि 20 रकात हो। अब अगर कोई कहे कि भाई जो रमजान के अलावा में तहज्जुद है वही रमजान में तरावी है, और फिर तुम्हारा ये सवाल कि हुजूर ज्यादा इबादत किया करते थे, ज्यादा इबादत कैसे साबित करोगे? तो जवाब देने वाला जवाब दे सकता है कि हुजूर रमजान के अलावा जो 8 रकात तहज्जुद की पढ़ते थे वो मुख्तसर पढ़ते थे, और रमजान में उन्हीं को लंबा कर दिया करते थे, आधी रात तक, सहरी तक। तो हो गई खूब इबादत, दोनों में मुताबकत हो गई। उसका जवाब यह है कि आपको गलत फहमी है, आपने अच्छी तरह किताबें नहीं पढ़ी है, आपने किसी जाहिल को मोबाइल पर सुन लिया है, ये किसी जाहिल की किताब पढ़ ली है। भाई हुजूर की तहज्जुद गैर रमजान में भी लंबी ही हुआ करती थी। आपने वो रिवायतें नहीं पढ़ी, वो हदीसें नहीं सुनी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर इतनी लंबी लंबी रकातें पढ़ा करते थे कि हुजूर के पांव पे वरम आ जाया करता था। और वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि हुजूर सजदे में गए और इतना लंबा सजदा किया कि मुझे डर होने लगा कि शायद हुजूर का विसाल ना हो गया हो। मैं हुजूर के पास गए और हुजूर के पाँव को छुआ तो हुजूर ने पाँव हिलाया, पता चला हुजूर माशाअल्लाह भी हयात है। तो हुजूर की जो तहज्जुद है वो गैर रमजान में भी लंबी हुआ करती थी। अब जब गैर रमजान में भी तहज्जुद लंबी है, रमजान में भी लंबी है, तो हुजूर का रमजान में ज्यादा इबादत करना कैसे साबित होगा? तो रमजान में ज्यादा इबादत उसी वक्त साबित हो सकती है जब तरावी की रकात 20 रकात हो। एक बात तो ये हो गई इस हदीस के जवाब के सिलसिले में कि इसका ताल्लुक तहज्जुद से है ना कि तरावी से। दूसरी बात, ये हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मनकूल है। हजरत आयशा का विसाल हुआ सन 57 हिजरी में, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो 20 रकात एक इमाम की इख्तिदा में शुरू कराई थी वो सन 15 हिजरी में। तो गोया के तरावी का सिलसिला शुरू होने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा 42 साल तक हयात रही। तरावी मस्जिद नबवी में होती थी और हजरत आयशा का हुजरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ है, और हजरत आयशा ने कभी भी तरावी पर नकीर नहीं की। अगर नकीर की है तो साबित कर दो, कभी हजरत आयशा ने मना किया हो कि भाई हुजूर तो तरावी 8 रकात पढ़ा करते थे, टोटल 11 रकात पढ़ा करते थे
اور تم 20 پڑھتے ہو. پوری زندگی میں حضرت عائشہ سے 20 رکعت تراویح میں 42 سال کے عرصے تک حضرت عائشہ سے نکیر منقول نہیں ہے. اگر ہے تو دکھا دو. اور تم کہتے ہو کہ بھئی یہ 20 رکعت بدعت ہے. بخاری شریف کی وہ روایت جو حضرت عائشہ سے منقول ہے بدعت کے سلسلے میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے بخاری کی کہ ہمارے اس دین میں اگر کسی نے کوئی نئی بات پیدا کی تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے. بدعت والی روایت بھی تو حضرت عائشہ سے منقول ہے، اور جب ان کے سامنے 42 سال تک مسجد نبوی میں نعوذ باللہ 20 رکعت تراویح والی بدعت ہوتی رہی، کیا ان کے اندر نعوذ باللہ اتنا ایمانی جذبہ بھی نہیں تھا جتنا کہ آج کل 8 رکعت تراویح کہنے والے جاہلوں کے اندر ہے؟ نعوذ باللہ اتنا بھی ایمان نہیں تھا حضرت عائشہ کا کہ وہ کسی کو روک ہی دیتی، وہ کسی کو منع ہی کر دیتی بھئی 20 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو. کسی بھی صحابی سے، کسی بھی صحابیہ سے، نہ حضرت عائشہ سے 20 رکعت تراویح پر نکیر ثابت نہیں ہے. ثابت ہے تو لا کر دکھاؤ، چیلنج ہے. بالکل ثابت نہیں کر سکتے. اور تم کہتے ہو 8 رکعت تراویح ہے. تمہیں شرم نہیں آتی دین میں تبدیلی کرتے ہوئے؟ تمہارا ایمان خراب ہے، تم اعمال سے جان چراتے ہو. تم امت کی جو فضا بنی ہوئی ہے 20 رکعت کی اور ایمان کی، اس کو خراب کرنا چاہتے ہو. تم کس کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہو؟ پڑوسی ملک کا ایک جاہل انجینئر محمد علی مرزا، جو ایرانی فلموں کا دیوانہ ہے، جس کے نزدیک مستند حوالہ ہے ایرانی فلمیں، وہاں سے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو دین سکھاتا ہے. اس نے 8 رکعت تراویح پر بڑے شور شرابے کے ساتھ موطا امام مالک کی ایک روایت پڑھی ہے، بڑے شور شرابے کے ساتھ. اور اس دلیل پر اس کو بڑا فخر ہے کہ میں نے 8 رکعت تراویح پر یہ دلیل دے کر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، مجھے اس پر فخر ہے. کیا ہے وہ روایت؟ پہلے اس روایت کے میں الفاظ سنا دوں کہ محمد ابن یوسف نقل کرتے ہیں سائب ابن یزید سے کہ انہوں نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی پڑھائے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. بڑے زور و شور کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عمر نے تو 20 رکعت تراویح کی پڑھوائی. موطا امام مالک کی روایت دیکھو جس میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو کہ 11 رکعت پڑھاؤ. تو ایک تو یہ 8 رکعت تراویح کی دلیل ہو گئی. پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں جو 20 رکعت تراویح کے قائل ہے کہ تم 20 رکعت کا ثبوت حضرت عمر سے کرتے ہو، دیکھو حضرت عمر تو کہہ رہے کہ 11 رکعت پڑھاؤ. یہ بہت بڑا جاہل انسان ہے، نہ اس نے پڑھا ہے. جو کچھ یہ فلموں میں دیکھ لیتا ہے، یہ 2-4 باتیں ادھر دیکھ لیتا ہے، اسی کو بڑے شور شرابے کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اور اتنا بڑا جاہل کہ اس کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں اس روایت کے بارے میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ امام مالک نے موطا امام مالک میں نقل کی ہے. امام مالک کا عمل اس حدیث کے مطابق ثابت کر دو، میں مان جاؤں گا کہ ہاں 20 رکعت تراویح سنت نہیں ہے، 8 رکعت تراویح ہے. کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ امام مالک جو اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں، جو موطا امام مالک کے مصنف ہے، خود اس کے مصنف کا عمل اس حدیث کے مطابق ثابت کر دے. بھئی امام مالک تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہے. خود حافظ ابن عبد البر جو موطا مالک کے شارح ہیں، بہت بڑے شارح ہیں، انہوں نے امام مالک کا مختار بہ قول نقل کیا ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے. کسی نے کہا کہ وہ 36 رکعت کے قائل تھے، چلو 36 مان لیتے ہیں، 20 مان لیتے ہیں، لیکن 8 رکعت کو وہ بالکل نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ بھائی جب یہ روایت موطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کی ہے اور یہ روایت قابل عمل ہے، تو امام مالک نے خود مصنف نے کیوں نہیں کیا؟ ثابت کر کے دکھائے. کبھی نہیں ثابت کر سکتے. کیوں نہیں ثابت کر سکتے اس کے بارے میں بتلاتا ہوں. دراصل اس روایت کو نقل کرنے والے محمد ابن یوسف ہے، اور محمد ابن یوسف نقل کرتے ہیں اپنے والد سائب ابن یزید سے. ٹھیک ہے،
اس روایت میں محمد ابن یوسف کی اس روایت میں 11 رکعت کا ذکر ہے۔ محمد ابن یوسف کی دوسری روایت میں جو ان کے شاگردوں نے ان سے نقل کی ہے 21 رکعت بھی بیان کی ہے۔ یعنی یہاں موطا امام مالک میں امام مالک نے محمد ابن یوسف سے نقل کیا، امام مالک محمد ابن یوسف کے شاگرد ہوئے، تو یہاں امام مالک نے محمد ابن یوسف سے 11 رکعت نقل کی ہے۔ محمد ابن یوسف کے جو دوسرے شاگرد ہیں امام مالک کے علاوہ، یہاں تو امام مالک ہے، امام مالک کے علاوہ انہوں نے اور دوسرے قول نقل کیے ہیں، 20 کا 21 کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اب بتلائیے، علماء نے کہا کہ اس روایت میں اضطراب ہو گیا، کیونکہ محمد ابن یوسف کو وہم ہو گیا۔ محمد ابن یوسف الگ الگ شاگردوں سے الگ الگ باتیں نقل کر رہے ہیں۔ امام مالک سے تو 11 رکعت نقل کی اور دوسرے شاگردوں سے 21 رکعت نقل کی ہے۔ جب محمد ابن یوسف کو وہم ہو گیا تو اس روایت میں اضطراب ہو گیا۔ دوسری روایت کہاں ہے؟ وہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کی ہے۔ امام مالک نے جو روایت نقل کی وہ تو یہاں ہے موطا امام مالک میں، اور محمد ابن یوسف کے جو دوسرے شاگردوں کی روایت ہے وہ فتح الباری میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس روایت میں اضطراب ہے تو یہ قابل عمل نہیں رہی۔ سند اس کی بالکل صحیح ہے، میں آپ کو بتلا دوں، سند بالکل صحیح ہے۔ نقل کرنے والے امام مالک نے نقل کیا محمد ابن یوسف سے، محمد ابن یوسف نے نقل کیا سائب ابن یزید سے، تو سند بالکل صحیح ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی سند صحیح ہو وہ قابل عمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ محدثین کا قول ہے کہ اگر سند بالکل صحیح ہے اور اس کے متن میں اضطراب ہے تو سند صحیح ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ سند بالکل صحیح ہے لیکن متن میں اضطراب ہے، اور اصول کیا ہے قاعدہ کہ متن میں اگر اضطراب ہے تو سند کے صحیح ہوتے ہوئے وہ روایت قابل اعتبار اور قابل عمل نہیں ہوگی، اس لیے اس پر عمل نہیں ہے امام مالک کا۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگر روایتیں مختلف ہو جاوے تو وہ اہل مدینہ کا عمل دیکھتے ہیں، اور اہل مدینہ کا عمل تھا 20 رکعت یا 36 رکعت، تو امام مالک اس وجہ سے 20 یا 36 رکعت کے قائل تھے۔ تو امام مالک کا بھی اس پر عمل نہیں ہے، اور عمل نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اہل مدینہ کا عمل اس کے روایت کے خلاف ہے، اور دوسرے اس روایت میں اضطراب بھی ہے۔ سند صحیح ہونے کے باوجود متن میں اضطراب کی وجہ سے اس روایت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دیکھو فتنے قسم کے لوگوں کو دیکھو، مزید میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اچھا، اسی موطا امام مالک میں محمد ابن یوسف کی روایت کے بعد یزید ابن رومان کی روایت آ رہی ہے فوراً بعد، جس میں 20 رکعتوں کا ذکر ہے تراویح کی۔ تو امام مالک جو اس کتاب کو نقل کرنے والے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، خود ان کا عمل اپنی روایت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں اضطراب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور یہ امت کے اجماع سے، صحابہ کے اجماع سے آج تک اسی طرح کا سلسلہ چلا آتا رہا۔ کوفہ میں، بصرہ میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، سعودیہ میں، حرم شریف میں، سب جگہ پر 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ ابھی 13ویں صدی ہجری سے 8 رکعت تراویح کی بات اٹھائی جانے لگی ہے، اور آج کل کچھ بددینوں نے اور بے دینوں نے مائک پکڑ کر اس پر بولنا شروع کر دیا۔ تو اپنا جو دین سیکھو نا تو وہ علماء سے سیکھو جو پڑھے لکھے ہیں۔ آج کل کے جو بدکار ہے، جو فلمیں دیکھ کر دین سیکھتے ہیں اور پھر وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جن کے اندر تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، شہرت کی طلب ہے، جو اہل اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، لوگوں کے سامنے بھلے اور دیندار بنتے ہیں، ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھو، ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھو۔ یہ قرآن حدیث کا نام لے کر کیا کہتے ہیں؟ بھئی کسی کی بات نہ مانو، ہم تو قرآن حدیث کی بات مانیں گے۔ حالانکہ اس کے چاہنے والے خود اس کی بات مانتے ہیں، قرآن حدیث کی نہیں مانتے۔ بھئی وہ بھی تو اپنی منوا رہا ہے نا،
تو آج کل کے بددینوں سے دین سیکھنے سے بہتر ہے کہ جو صحابہ کرام تھے تابعین سے، ان سے دین سیکھا جائے۔ تو تراویح جو 20 رکعت ہے وہ سنت ہے، 8 رکعت تراویح سنت نہیں ہے۔ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ چیز ہے۔ جو 8 رکعت کے قائل ہے وہ کھینچ تان کر تہجد والی روایتوں سے تراویح ثابت کرتے ہیں، عملاً تو کہیں سے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ میں روایت کی بات کر رہا ہوں کہ جو تہجد والی روایت ہے، کھینچ تان کر ان کو تراویح پر فٹ کرتے ہیں۔ صرف روایت ہے یہ تہجد والی جو کھینچ تان کر فٹ کرتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ صحابہ کا عمل اگر دیکھیں گے، تابعین کا جو عمل دیکھیں گے تو وہ تو 20 رکعت کا ہے۔